ماہی گیر اور دیو کی کہانی کے بعد جو اگلی کہانی ہے وہ ہے یونان بادشاہ کے وزیر کی کہانی۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو سن، اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا۔ اگلا زمانہ یعنی کہ پچھلا زمانہ۔ اس کا نام تھا یونان۔ اس کے پاس بے حد مال و دولت اور لاؤ لشکر تھا۔ وہ بڑے دبدبے والا تھا، لیکن اسے کوڑ کی بیماری تھی اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ بہت سی دواؤں اور سفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا، لیکن کسی سے فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا۔ کوڑ اصل میں بیماری ہوتی ہے، لیپروسی بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس میں مطلب زخم سے پوری باڈی میں ہو جاتے ہیں، اسکن عجیب سی خراب ہو جاتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک بار یونان بادشاہ کے دارالسلطنت میں ایک بڑا اور بوڑھا حکیم آیا۔ اس کا نام دوبان حکیم تھا۔ اس نے یونانی، فارسی، رومی، عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اور طب اور نجوم یعنی کہ میڈیکل اور جو پامسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا۔ جب یہ حکیم شہر میں آیا اور کچھ دنوں وہاں رہا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کو کوڑ کی بیماری ہے اور سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ جب حکیم کو اسی خبر پہنچی تو وہ رات بھر سوچتا رہا، اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ خدا تیری عزت و آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے۔ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اس کے دور کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، اور اب میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، بغیر اس کے کہ کوئی دوا پلاؤں یا مالش کروں۔ جب یونان بادشاہ نے یہ سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا؟ قسم ہے خدا کی کہ اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشتہا پشت تک دولت مند بنا دوں گا، یعنی کہ تیری 7 پشتوں تک یا آنے والی ساری پشتیں نسلیں جو ہیں ان کو دولت مند بنا دوں گا۔ پھر بادشاہ نے اسے خلت عطا کی اور اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا، اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے بے دوا اور بے مالش اچھا کر دے گا؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ بادشاہ کو اس پر بہت تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا کہ اے حکیم، جو علاج تو کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا؟ اس نے کہا کہ بصر و چشم کل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر آیا واپس حکیم، اور ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں اپنی کتابیں اور دوائیں اور جڑی بوٹیاں رکھیں۔ پھر دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پولو کا بلہ بنایا، پولو کا بلہ جو ہوتا ہے وہ بنایا، اور اسے اندر سے خالی رکھا، اور اس کا ایک دستہ بنایا، اور اپنے علم کی بنا پر پولو کی گیند جب وہ سب چیزیں بنا کر تیار کر چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بلے سے پولو کھیلیے۔ پولو جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جو پولو کھیلتے ہیں نا۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے عمرہ اور وزراء ہو لیے۔ جو ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلہ دے کر کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں بڑھیے اور ہاتھوں کو خوب جھونک دے کر گیند پر بلہ ماریے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارے بدن پسینے پسینے ہو جائے، سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے۔ اس طرح سے دوا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرائیت کرے گی، اور جب آپ کھیل چکیں گے تو دوا سرایت کر چکی ہو تو اپنے محل میں واپس جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو جائیے، بس آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ کر اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوط پکڑے رہا۔ اسی طرح وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا۔ جب دوبان حکیم کو یقین آ گیا کہ دوا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام کیجیے، یعنی کہ نہا لیجیے۔ بادشاہ نے حکیم کے کہنے کے مطابق غسل کیا اور دل کھول کر نہایا، اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں آ کر سو گیا۔ جب بادشاہ حمام سے نکلا تھا اور اپنے بدن پر نظر ڈالی تو کوڑ کا کوئی اثر باقی نہ تھا، بلکہ اس کا جسم سفید چاندی کی طرح صاف تھا۔ بادشاہ اس پر خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا، اور اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب صبح ہوئی اور وہ دوبارہ دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر اور ملک کے شرفاء ادھر ادھر کھڑے ہوئے اور دوبان حکیم داخل ہوا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا، یعنی کہ اپنے ساتھ بٹھایا، اور اسے اپنے ساتھ کھلایا اور دن بھر اسے اپنی ہمراہی میں رکھا۔ جب رات ہونے کو آئی تو اس نے دوبارہ
दुबान हकीम को 2000 दिनार दिए और बहुत सी खुल्लत यानी कि तोहफे दिए, और उसके अलावा और भी बहुत सा इनाम इकराम किया, और उसको अपना ख़ास घोड़ा सवारी के लिए दिया, और वो अपने घर वापस आ गया। यूनान बादशाह उसके इस इलाज पर सख्त ताजुब करता और कहता कि इस शख्स ने मेरा इलाज बैरूनी तरीके से किया और तेल से मालिश तक ना की। खुदा की कसम, ये बड़ी हिकमत का काम है। ऐसे शख्स के साथ जितना इनाम इकराम किया जाए कम है। बादशाह ने उसे अपना रफीक और दोस्त बना लिया। उसने रात खुशी खुशी गुजारी क्योंकि उसके बदन से बीमारी दूर हो गई थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। जब सुबह हुई तो यूनान बादशाह बाहर निकला और शाही कुर्सी पर बैठा। उस वक्त उसने दोबारा हकीम को याद किया, दुबान हकीम को वापस बुलाया। वो आया और उसके सामने जमीन को बूसा दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसे अपने पहलू में जगह दी और उसके साथ खाना खाया और दुआ मांगी कि खुदा उसकी जिंदगी ज्यादा करे, और उसे खुल्लत अता की और इनाम दिया, और रात तक उसके साथ बातचीत करता रहा। फिर उसने हुक्म दिया कि उसे 5 खुल्लत और 1000 दीनार दिए जाएं। हकीम बादशाह का शुक्रिया अदा करता हुआ घर वापस आया। जब सुबह हुई तो बादशाह अपने दरबार में आया और उम्रा वुज़रा खुद्दाम उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। लिखने वाला जिसने ये कहानी लिखी है वो कहता है कि बादशाह का एक वजीर था जो निहायत बदसूरत, कमीना, कंजूस और हासिद था। जब उसने देखा कि बादशाह ने दुबान हकीम को अपना मुकर्रब बनाया है और उसे इस कदर इनाम इकराम दिए हैं कि उसके दिल में हसद की आग बढ़ने लगी और वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। कहा जाता है कि जुल्म हर शख्स के अंदर पाया जाता है, फर्क महज इतना है कि ताकतवर उसे जाहिर कर देता है और कमजोर उसे छुपाए रखता है। अलगर्स वजीर यूनान बादशाह के पास आया और उसके आगे जमीन को बूसा दिया और कहने लगा कि जहां पना, मैंने आप ही की नेकियों के अंदर परवरिश पाई है और मैं एक नसीहत करना चाहता हूं। अगर मैं उसे अपने दिल में छुपाए रखूं तो हराम ज्यादा हूं, अगर आप इजाजत दें तो कहूं। बादशाह को ही सुनकर परेशानी हुई और वह कहने लगा कि आखिर वो कौन सी नसीहत है। वजीर ने कहा, ए जलीलुल कदर बादशाह, बुजुर्गों का कौल है कि जो कोई अंजाम को नहीं सोचता जमाना उसका साथ नहीं देता। मैं देखता हूं कि बादशाह ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो अपने ऐसे दुश्मन पर जो उसके मुल्क को सत्यानाश करना चाहता है इनाम इकराम कर रहा है और उसके साथ भलाई से पेश आता है और उसे बहुत बड़ा मर्तबा दे रखा है। मुझे डर है कि कहीं बादशाह को नुकसान न पहुंच जाए। बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा कि तेरा गुमान किस तरफ है और तू किसकी तरफ इशारा कर रहा है। वजीर ने कहा कि अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, अभी भी मौका है। मेरा इशारा दुबान हकीम की तरफ है। बादशाह ने कहा कि लानत हो तुझ पर, वो तो मेरा दोस्त है और मैं उसे सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरा इलाज एक ऐसी दवा से किया जिसे मैंने महज हाथ में लिया और बीमारी जाती रही। इस बीमारी के इलाज से तमाम हकीम आजिज आ चुके थे। उसका सानी इस जमाने में नहीं है। उसके मुतालिक तू ऐसी बात कहता है, मैं आज ही से उसका रोजीना और तनख्वाह मुकर्रर किए देता हूँ। रोजीना यानी कि रोजाना का जो खर्चा होता है, पॉकेट मनी। हर महीने उसे 1000 दिनार दिया करूंगा। अगर मैं उसे अपने मुल्क का भी साझेदार बना लूं तो कम है। मैं खूब समझता हूं कि तू महज हसद की वजह से ये बातें कर रहा है, जैसे सिंदबाद बादशाह के साथ पेश आया था। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिंदबाद बादशाह का किस्सा पूछूं कि यह क्या किस्सा है। सिंदबाद बादशाह की कहानी। बादशाह ने सिंदबाद बादशाह की कहानी वजीर को सुनाना शुरू करी। कहते हैं कि फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह था। उसे ऐश और इशरत और शिकार का बड़ा शौक था। उसने एक बाज पाल रखा था जिसे दिन रात अपने साथ रखता था। उसके लिए उसने एक सोने का कटोरा बनवाया था जो उसकी गर्दन में लटका रहता था और जिसमें वो पानी पिया करता था। एक रोज वो बैठा हुआ था कि रखा के सूबेदार ने अर्ज की कि आज कल शिकार का अच्छा मौसम है। बादशाह ने कूच का हुक्म दे दिया और बाज को अपने हाथ पर बिठाकर सबके साथ रवाना हो गया। एक वादी में पहुंचकर शिकार के लिए घेरा डाला गया तो क्या देखते हैं कि घेरे के अंदर एक हिरनी आ गई है। बादशाह ने कहा कि जिस किसी के सर के ऊपर से यह हिरनी कूद कर निकल जाएगी तो उसको कत्ल कर दूंगा। अब घेरा तंग होता चला जाता था कि इतने में हिरनी बादशाह की कयामगाह के पास आई और पिछले पांव पर खड़ी होकर अगले पांव सीने पर बांध लिए, गोया वो बादशाह के आगे जमीन को बूसा देना चाहती हो। बादशाह ने हिरनी की खातिर अपना सर झुकाया तो वो उसके सर के ऊपर से कूद कर जंगल की तरफ भाग गई। बादशाह ने देखा कि उसके सिपाही उसकी तरफ आंखें मार रहे हैं। वजीर ने उसका सबब पूछा। उसने अर्ज की कि वो कहते हैं कि आपका हुक्म था कि जिसके सर के ऊपर से हिरनी कूद कर निकल जाएगी उसका सर उड़ा दिया जाएगा। बादशाह ने कहा कि सर की कसम,
मैं उसका पीछा करूंगा और उसको लाकर छोड़ूंगा। ये कहकर उसने हिरनी के पीछे घोड़ा डाल दिया और उसका पीछा करते करते एक पहाड़ी तक पहुंचा, जहां हिरनी एक खड्ड के ऊपर से कूदकर निकल गई। बादशाह ने बाज को उसके पीछे छोड़ा और उसने पंजे मार मार कर हिरनी को अंधा और परेशान कर दिया। बादशाह ने गर्ज निकाल कर उस पर वार किया और वह जमीन पर लौटने लगी। बादशाह घोड़े से उतरकर आया और उसे जिबा कर दिया और उसकी खाल खींची और उसे अपने घोड़े की काठी से लटका लिया। इतने में तीसरे पहर के सोने का वक्त हो गया। जंगल बयाबान था जिसमें पानी का नामो निशान तक ना था। बादशाह को प्यास लगी और घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह ने इधर उधर चक्कर लगाया तो देखा कि एक दरख्त से पानी मसले मक्खन के टपक रहा है। बादशाह के हाथों में चमड़े के दस्ताने थे। उसने बाज की गर्दन में से कटोरा उतारा और उसमें वही पानी भरकर अपने सामने रखा। बाज ने पर मारकर कटोरा उलट दिया। फिर इसने दूसरी बार कटोरा लिया और उसमें इन कतरों को टपकने दिया, यहां तक कि वो फिर भर गया। बादशाह ने ख्याल किया कि बाज प्यासा होगा, इसलिए वो पानी उसके सामने कर दिया। बाज ने फिर पर मारकर उसे उलट दिया। बादशाह को बाज पर बहुत गुस्सा आया और फिर उठा और पानी भरकर घोड़े के आगे बढ़ाया। बाज ने फिर बाजू मारकर पानी गिरा दिया। बादशाह ने कहा कि ए मनहूस बाज, खुदा तुझसे समझे, ना तो तूने मुझे पानी पीने दिया और ना घोड़े को, और ना खुद पिया। ये कहकर उसने बाज पर तलवार का एक हाथ मारा कि उसके दोनों बाजू कटकर गिर गए। बाज ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, गोया ये इशारा किया कि देख ऊपर क्या है। बादशाह ने नजर ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त के ऊपर काले सांप के बच्चे हैं और ये पानी असल में पानी नहीं, उनका जहर था। बादशाह बाज के बाजू कटने पर बहुत पछताया और उठ खड़ा हुआ और हिरनी को लेकर चल दिया। खैमा गाह में पहुंचकर उसने हिरनी अपने बावर्ची को दी कि उसे ले जाकर तल कर लिया। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाज उसके हाथ पर। बाज ने एक हिचकी ली और फौरन दम तोड़ दिया। बादशाह रंज और अफसोस के मारे चिल्लाने लगा कि हाय, जिस बाज ने मेरी जान बचाई, मैंने उसे खुद मार डाला। यह है सिंदबाद बादशाह की कहानी। जब वजीर ने यूनान बादशाह से ये सुना तो कहने लगा कि जहां पना, जो कुछ उसने किया मजबूरी की वजह से किया और मैं इसमें कोई बुराई नहीं पाता, और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो महज आपकी मोहब्बत की वजह से है, ताकि आपको सही वाकया मालूम हो जाए, वरना आप भी यूं ही तबाह हो जाएंगे जिस तरह वो वजीर हुआ जिसने शहजादे के साथ दगाबाजी की थी। यूनान बादशाह ने पूछा कि वो क्या किस्सा है, मुझे सुना। दगाबाज वजीर की कहानी जो है वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सुनाऊंगा मैं। अल्लाह हाफिज।